Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. In this particular session, I am revising for you the chapter probability. Yes, in this session, we would be shortly revising all the important concepts as well as very important the formulas that you must remember from this chapter to appear for the questions on probability, because there are many questions can be framed directly on the formulas on the probability. Apart from that, based on the basic definitions of empirical probability and the conditional probability and Bayes theorem, you would be also having in your NDA written examination questions, isn't it? So we are discussing all the sort of those basics you must revise for your last minute revision schedule. Okay, so let us have look into, let's first of all recall what is a sample space. What is a sample space? Basically, it is a set consisting of all the possible outcomes of an experiment. Now, what are the experiment? Experiment you must be knowing. Experiments like, throwing a coin, throwing two coin, throwing three coin, or throwing a die or two die, and so on, right? So what you people supposed to know, that you should know the sample spaces of all those such a basic experiments on which base you would you would get a questions. तो आपको रिमाइंड कर लेना है वन कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होता है. देखो बता देती हूँ, एच कॉमा टी होता. दो कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होता, इसमें आते एच एच, या तो एच टी, या तो टी एच, या तो टी टी. उसी तरह से यू कैन मेक द सैंपल स्पेस फॉर थ्री कॉइन्स. ओके, एंड सिमिलरली वन डाइस के लिए आपको पता है इसमें क्या सैंपल पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 आते हैं. सिमिलरली फॉर टू डाइस, ओके, सैंपल पॉइंट्स कितने रहते हैं, एन ऑफ एस रहता है उसमें 36, 6 इंटू 6 36. इसमें कितना रहता है, वन डाइस के एक्सपेरिमेंट में एन ऑफ एस कितना रहता है, 6. तो एन ऑफ एस आप समझ रहे हो ना, एन ऑफ एस इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस which is particularly a set of all the possible outcomes of an experiment. Not only this, you should must have the information about the cards. Cards are basically of the two, right, red and black cards. Red जो रहते हैं hearts रहते हैं and diamonds रहते हैं, और जो black cards रहते हैं वो spades and clubs रहते हैं. And then you should also know that in each set there is a king, there is a queen, there is a jack, right? You shall must know these all face cards and all the information about the cards, because ये cards के ऊपर भी आपको आया तो एक क्वेश्चन आ सकता है. So sample space तो आपको पता है ना, sample space में आप basically क्या करोगे, you would write the collection of all the possible outcomes for an experiment mentioned in the problem. अगर कोई प्रॉब्लम वन कॉइन के ऊपर बनाया गया है, तो वन कॉइन थ्रो करने का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके सैंपल पॉइंट्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए. इस तरह से कोई भी जेनेरिक क्वेश्चन का आ जाएगा आपको, तो सैंपल स्पेस आपको ढूंढने आना चाहिए. वो उसमें क्या रहता है, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. यू वोंट बी थिंकिंग टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर, बट यू आर थिंकिंग all you are thinking for the all possible things, you are thinking for the all possibilities, and those all possibilities you will collect together and put it in a set that would call as a sample space, and you denote it by the set name as S. और n of s क्या denote करता है, n of s is what, the cardinality of the sample space. क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो नेक्स्ट, what is an event? इवेंट इज बेसिकली द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. अभी ये इवेंट एक टाइप का आपका क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर का. वो बोलते हैं coin has thrown, two coins are thrown, what is the probability of getting exactly two tails? तो getting exactly two tails ये क्या हो गया, इवेंट हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे. तो इस तरह से इवेंट क्या रहता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस रहता है. क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स विच आर इन एस, मतलब यूनिवर्सल होता है ना हमारे, यूनिवर्सल सेट प्रोबेबिलिटी में कौन है, अपना सैंपल स्पेस. तो जो कि सैंपल स्पेस में है बट ए में नहीं है, तो वो किस में जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट में जाएंगे. और हम ए कॉम्प्लीमेंट या तो ए, इस ए के ऊपर बाद लिखे इस तरह से कॉम्प्लीमेंट डिनोट करते हैं. इसमें क्या आएंगे, इसमें सब कुछ ऐसे आएंगे जो एस में है बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. क्लियर है? क्लियर है क्या बात? तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट एंड इवेंट का डेफिनेशन. अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, कंपाउंड इवेंट क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कंपाउंड इवेंट मतलब ये बना हुआ है दो सेट से, मतलब इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, टू गिवन इवेंट्स. सी इवेंट्स और सेट में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है. आप जब इवेंट बोल रहे हो तब आप एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो और उसका एक सब पार्ट की बात कर रहे हो, बट एक टाइप का सबसेट ही है ना, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट कौन हो गया, सैंपल स्पेस हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी में, और सबसेट कौन हो गया, इवेंट हो गया. तो कभी कभी मैं इवेंट बोल रही हूँ, कभी सबसेट बोल रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज. इवेंट एंड सबसेट आर सेम. ओके, तो ए एंड बी आर टू गिवन इवेंट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा इसको हम बोलेंगे ए टाइप ऑफ कंपाउंड इवेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, और यू कैन राइट ए बी, और यू कैन राइट ए एंड बी. ये तो डिफरेंट वे है, आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन पाओगे कंपाउंड इवेंट के. दो इवेंट का ये कॉम्बिनेशन है, सिंपल भाषा में अगर याद रखो जो याद रखने जाओ तो, है ना, ए इंटरसेक्शन बी
या तो आप लिखोगे ए बी या तो आप लिखोगे ए एंड बी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इवेंट. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? जब आपके पास टू इवेंट्स होते हैं, दे आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और इसके अलग नाम है डिसजॉइंट इवेंट और इनकम्पैटिबल. ये दोनों किसके नाम है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के. कब बोलेंगे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा? जीरो रहेगा. मतलब कंपाउंड प्रोबेबिलिटी उनकी जीरो रहेगी. समझ में आ रही बात? इफ द ऑकरेंस ऑफ वन प्रिक्लूड्स rules out the simultaneous occurrence of the other. That is, if A and B are two mutually exclusive events, then P of A and B, मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे? मैंने कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा, क्या सिंपल भाषा देखो ये है. सिंपल भाषा क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहना? जीरो रहना. तो ए एंड बी को हम क्या बोलते? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अभी इसका कनेक्शन लगाओ. आपको पता है बेसिक आइडेंटिटी, ये मैं रिकॉल कर देती हूँ फिर से एक बार. P of A plus P of B minus P of A intersection B. तो जब दो इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो ये तो बन गया जीरो. तो हमारा P of A यूनियन B क्या बोलता? ये बोलता दिस इज इक्वल टू P of A plus V of B. तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जब यूनियन की प्रोबेबिलिटी हो जाती है P of A plus P of B फॉर गिवन टू इवेंट्स, देन यू वुड से दैट द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. या तो सिंपल उसका याद रखो कि P of A intersection B जीरो है, मतलब क्या हो गया? A and B are the events which are said to be mutually exclusive events. ठीक है. अभी देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि है इक्वली लाइकली इवेंट्स की. इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? ये दो ऐसे इवेंट्स है जिनका ऑकरेंस ना इज एज लाइकली एज अदर है. मतलब कैसे? एक एक का प्रोबेबिलिटी और दूसरे के प्रोबेबिलिटी के चांसेस होने के सेम है. जैसे इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन ईच इवेंट इज एज लाइकली टू ऑकर एज एनी अदर इवेंट. अभी इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ ना. समझो आप ले लेते हो सिंगल कॉइन का एक्सपेरिमेंट. उसका सैंपल स्पेस तो पता है आपको, हेड आएगा या तो टेल आएगा. अभी मैं इसका इवेंट बनाऊं गेटिंग एन हेड, तो उसका भी 1/2 है, और टेल का भी मैं अगर इवेंट बनाऊं गेटिंग अ टेल, तो उसका भी 1/2 है. तो ये दोनों इवेंट्स गेटिंग एन हेड और गेटिंग अ टेल, ये दोनों इवेंट्स क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स है, क्योंकि चांसेस ऑफ ऑकरिंग हेड इज एज लाइकली एज चांसेस ऑफ ऑकरिंग द अदर इवेंट दैट इज टेल. समझ में आ गई? सिंपल सिंपल भाषा में इसका मीनिंग समझ में आ गया रहेगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ठीक है. अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है. एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर दोज, अगर उसका सबका आप एक यूनियन का बनाओगे तो उसका यूनियन क्या देगा? पूरा सैंपल स्पेस का ही दे देगा. मतलब क्या होता पता है? यूनियन जो है ना सैंपल स्पेस को मैप करता. जब आपके पास इवेंट्स रहते हैं, समझो ए बी सी डी सो ऑन करके एल तक कुछ इवेंट्स है एक एक्सपेरिमेंट के, अगर ये सभी इवेंट्स को अगर हम यूनियन ले लेंगे तो आपको सैंपल स्पेस ही मिलेगा. तो ये सभी इवेंट्स को मैं क्या बोलूंगी? एग्जॉस्टिव. देखो वर्ड एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट करना मतलब खत्म हो जाना. मतलब कुछ भी इवेंट अभी नया नहीं बना सकते, यही इवेंट्स है जो बना सकते हैं. जैसे कि मैं फिर से एक एग्जांपल लेना चाहूंगी. यहाँ पे समझो आपका सेम एक्सपेरिमेंट में बोलती हूँ हेड एंड टेल. ठीक है. तो मैंने अभी यहाँ पे एक इवेंट ए बनाया गेटिंग हेड, इवेंट बी बनाया गेटिंग टेल, इवेंट सी बनाया गेटिंग गेटिंग से टू हेड्स, जो कि जिसकी तो जीरो होगी. अभी इसके अलावा कुछ भी मैं इवेंट्स बनाने जाऊँ, गेटिंग वन हेड गेटिंग वन टेल. ठीक है. तो कुछ भी अगर मैं इसमें बनाने जाऊँ तो ये सबके प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो. मतलब ये दो इवेंट्स क्या है? म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स भी है, और ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है एक्सपेरिमेंट के लिए, सिंगल कॉइन एक्सपेरिमेंट के लिए. आप चाहो तो कुछ और एग्जांपल ले सकते हो, कुछ और एग्जांपल आप ले लो. समझो मैं डाइस का एग्जांपल लेती हूँ. तो डाइस में क्या होता है? अगर आप सिंगल डाइस थ्रो करते हो, सिंगल डाइस को आप थ्रो करते हो तो सैंपल स्पेस क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 करके पॉइंट्स आते हैं इसमें. अभी मैं इवेंट ए बना रही हूँ टू गेट द इवेंट नंबर ऑन द डाइस फेस, ओके, एंड बी इवेंट बना रही हूँ टू गेट द ऑड नंबर. तो इवेंट में क्या आएंगे पॉइंट्स? 2 4 6 आएंगे, और ऑड में क्या आएंगे? 1 3 5 आएंगे. अभी मैं ए यूनियन बी बनाऊँ तो मुझे तो पूरा सेट मिल गया ना. तो ये ए एंड बी को मैं एक तरह से क्या बोलती हूँ? ये ऐसे इवेंट्स है कि इनका अगर यूनियन बनाऊं तो ये यूनियन क्या देगा? पूरा सैंपल स्पेस देगा. तो आपको अभी समझ में आई भाषा? एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब ऑल दोज इवेंट्स which are the subsets of the sample space, the combination of all the subsets, the union of all the subsets going to give you your sample space only. So that is called exhaustive events. Those are called exhaustive events. Okay.
तो यहाँ पे देख लो फिर अगर दो इवेंट्स है आपके केस में ए एंड बी आर टू एग्जॉस्टिव इवेंट, देन आप क्या बोलोगी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है क्योंकि इसमें सबके सब आउटकम्स आते हैं, है ना, सबके सब आउटकम्स आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहती है। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी की हो जाएगी 1 व्हेन ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे जब भी आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं तो उनका यूनियन का प्रोबेबिलिटी कितना रहता, 1 रहता है। ये चीज यहाँ पे समझना है आपको, दिमाग में रखना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी आते हैं हम बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे जिसको हमें डिस्कस करना है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी अब तक हम बोल रहे थे चांसेस ऑफ ऑकरिंग इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट, सो ऑन सो ऑन, बट ये प्रोबेबिलिटी को हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं विद एन वैल्यू, ओके। एंड आई वुड आल्सो टेल यू कि वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी लाइज इन सर्टेन बिटवीन द फिक्स रेंज, ओके। तो हम सब बात करेंगे, पहले देख लेते हैं व्हाट इज अ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोलता है, समझो, इफ n represents the total number of equally likely, mutually exclusive, exhaustive outcomes of an experiment and m of them are favorable to the happening of the event A, then the probability of happening of the event A is given by p of A is equals to m by n। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्या डेफिनेशन, कुछ नहीं, आसान है। यहाँ पे ये n क्या है, ये समझो n है आपका पूरा सैंपल स्पेस, कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, अभी वो एक्सपेरिमेंट्स के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं ना, जैसे कि अभी आप डाइस थ्रो करो, आप प्राइम नंबर का इवेंट बना सकते हो, इवन नंबर का इवेंट बना सकते हो, मल्टीपल ऑफ 3 का बना सकते हो, मल्टीपल ऑफ 2 का बना सकते हो, मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे बहुत सारे आप इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव आउटकम ऐसा इवेंट्स बना सकते हो कि नहीं, ये n के ऊपर, दैट इज द सैंपल स्पेस के ऊपर। तो अभी उसमें से अभी जो एक इवेंट की आप बात करो, अभी एक इवेंट की, तो इसके जो फेवरेबल रहेंगे, समझो m है, समझो मैं कोई एक इवेंट बोल देती हूँ, मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो उसका m कितना रहेगा, 3 पॉइंट्स रहेगा व्हेन यू थ्रो अ डाइस when you throw a dice, right? So m of them are favorable to the happening of particular event A, then particular event A, then the probability of happening of the event A क्या हो जाता, it's the ratio of m favorable outcomes upon n। तो अगर मैं इसको प्रॉपर भाषा में लिखना चाहूँ, probability of an event A is equals to favorable outcomes in A, okay, favorable outcomes in A upon total outcomes, सिंपल भाषा है। टोटल आउटकम मतलब हो गया कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम्स इन ए हो गया कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए, ओके, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए। अगर ए आपका इवेंट है तो, अगर ए आपका इवेंट है तो एन ऑफ ए क्या हो गया, उसकी कार्डिनलिटी, इवेंट के आप कलेक्शन, इवेंट के पॉइंट्स निकालोगे ना, इसका एन ऑफ ए लिखोगे इवेंट के पॉइंट्स, और एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस लोगे तो आपको क्या मिलेंगे, चांसेस ऑफ ऑकरिंग। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, समझो हमारे पास है सैंपल स्पेस विद दी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, तो मैंने बोल दिया कि आई थ्रोन अ डाइस, ठीक है, और मुझे एक इवेंट ई बनाया मैंने टू गेट दी इवन नंबर, सो 2 4 6। तो अभी मुझे बताओ एन ऑफ ई कितना है, एन ऑफ ई है 3, एन ऑफ एस कितना है 6, तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो तो ये कैसे आएगा, 3 आउट ऑफ 6 चांसेस, दैट इज 1 आउट ऑफ 2, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज the favorable outcomes to an event divided by total possible outcomes in an experiment। और अभी एक बात यहाँ पे हमें ये समझ के लेनी है और दिमाग में रखनी है कि अगर हमें पता चला कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है, रेशियो है, प्रोबेबिलिटी क्या है, रेशियो है, जो कि इवेंट के आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जब ये टोटल आउटकम्स और इवेंट के आउटकम्स सेम हो जाएंगे तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल होकर 1 हो जाएगी, और इसके वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1 ही रहेगी, क्योंकि न्यूमेरेटर जो रहेगा ना हमेशा ये छोटा रहता ना, ये तो सबसेट ही एस का है ना, तो सबसेट ही एस का है, तो इसके ए के जो एलिमेंट्स रहेंगे कम रहेंगे कंपेयर टू एस, तो इसीलिए एन ऑफ ए हमेशा छोटा रहेगा एन ऑफ एस से, बट जब एन ऑफ एस सेम हो जाते तब उसकी वैल्यू हो जाती है 1 प्रोबेबिलिटी की। इसीलिए मिनिमम वैल्यू 0 कब रहेगी, जब एन ऑफ ए में वैल्यू 0 रहेंगे, कुछ भी पॉइंट्स नहीं आएंगे सबसेट में, जैसे कि एम्प्टी सेट इज एन सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, तो एम्प्टी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी 0, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं इट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहती है, मैक्सिमम इसका वैल्यू रहता है 1, लेस देन 1 रहती, अबव 0 इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, अबव 0 and it is less than 1, it can be equal to 1 when it is in sure event, sure event मतलब सबके सब उसमें sample points आ जाएंगे event में, and it is impossible मतलब तब उसका probability आता है 0। For all the other event except the impossible event and the certain event, the probability of event would be what,
the probability of event E would be what? It will be either above 0 and below 1. क्लियर है बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये जो इसलिए मैंने जो बॉक्स बनाया है ये है इम्पोर्टेंट, ये जो बॉक्स बनाया गया है विद ग्रीन बॉक्स, ये इसको जो बॉक्स बनाया गया, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट इसमें बता रहा है 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1। ओके, कभी भी याद रखो, अगर कुछ ऐसा कुछ आ रहा आपको कैलकुलेशन में, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अबव 1 आ रही, मतलब आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है या तो कुछ तो उसमें रॉन्ग है, इम्पॉसिबल चीजें हो रही है, इम्पॉसिबल इवेंट है वो, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बियॉन्ड 1 जाती है और बिलो 0 आती है, वो सब इम्पॉसिबल इवेंट्स है, मतलब जो हो नहीं सकते, निगेटिव वैल्यू वगैरह वो सब रॉन्ग है। वी कैन नॉट असाइन अ निगेटिव नंबर टू प्रोबेबिलिटी वैल्यू, वी कैन नॉट असाइन मोर देन 1 वैल्यू टू दी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐड करते हो तो 1 आता, क्योंकि क्या होता कि आप जब ए कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हो, इसमें कौन बंदे हैं, इसमें एस वाले बंदे हैं जो कि ए में नहीं है ना, तो एस वाले सभी रिमेनिंग बंदे तो ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए, फिर एक इवेंट था ए कॉम्प्लीमेंट, रिमेनिंग एस वाले पूरे बंदे आ गए, तो पूरा मिला के तो फिर से सैंपल स्पेस मैप हो गया ना। मतलब आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि कोई भी सेट सैंपल स्पेस को हम लोग ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते ना, कोई भी सैंपल स्पेस को ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते, क्योंकि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाते, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाते फॉर अ सैंपल स्पेस। एक इवेंट ए बनाया और उसका एक कॉम्प्लीमेंट इवेंट बनाया, तो उसका यूनियन जो हो जाता एग्जॉस्टिव हो जाता, पूरा सैंपल स्पेस को मैप करता, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है 1। और ये रिजल्ट बहुत यूजफुल होता है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में। देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ एरेज करके ये पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना है मुझे आपको, इस रिजल्ट को हम यूज करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व में। जब भी आपको पी ऑफ ए कैलकुलेट करना रहता है, आप 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट करके कर सकते हो, या तो आपको पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो इसको आप 1 माइनस पी ऑफ ए करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये सभी बातें क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जब भी हम ए यूनियन बी कुछ बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है आपको पता है, उसका एक्चुअल मीनिंग हो रहा है ए प्लस बी हो रहा, इसको और एक मीनिंग में हम लेते हैं ए और बी करके, डिनोट्स द ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट ए और बी फॉर गिवन टू इवेंट्स ए एंड बी। मैं यहाँ पे जस्ट आपको ये मीनिंग बताने के लिए ली हुई है पॉइंट। ए यूनियन बी का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसमें ए के एलिमेंट्स आते हैं, बी के आते हैं, या तो दोनों में होने वाले आते हैं, है ना। तो इसका मतलब एटलीस्ट ए या तो एटलीस्ट बी की बात हो रही है, एटलीस्ट ए और बी की बात हो रही है। एटलीस्ट ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, इसमें क्या आता और वर्ड आता, और इसका अपोजिट क्या रहेगा, ए यूनियन बी का अपोजिट क्या रहेगा, एटलीस्ट ऑफ ए और बी का अपोजिट क्या रहेगा, नीदर ए नॉर बी। ये बात ध्यान में रख लो, नीदर ए नॉर बी। जैसे कि आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ओके, इसका समझो अगर m है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, 1 माइनस एम रहेगा, और ये क्या है अपोजिट, ये वैल्यू क्या है, नीदर ए नॉर बी की वैल्यू है वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, नीदर ए नॉर बी है, विच इज द अपोजिट ऑफ एटलीस्ट ए और बी, ठीक है। और दूसरी बात देख लो यहाँ पे, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0। तो यहाँ पे मैंने फिर से दे दिया आपको फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे मैं जस्ट आपको क्या पढ़ा रही थी, डेफिनेशन पढ़ा रही थी, तो यहाँ पे मैंने फिर से ये एक्सप्लिसिटली आपके लिए लिखा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अभी हम फटक से रिवाइज कर लेते हैं रिजल्ट्स को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है हमारे, ठीक है, जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैंने 2 इवेंट्स के लिए लिखा है, आप इसी को 3 इवेंट्स में भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को कैसे लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसके अलावा ये आपको ध्यान में रखना है जो मैंने सेकंड पॉइंट बनाया, अगर आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी ऑकर्स का चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी ऑकर्स, एग्जैक्टली वन। तो एग्जैक्टली वन का मतलब क्या चाहिए, ए चाहिए बी नहीं चाहिए, या तो बी चाहिए ए नहीं चाहिए, इसका मतलब हो गया एग्जैक्टली वन। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये निकाला कैसे जाएगा, इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी ऑकर्स का है। ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स
P of A intersection B. This is the formula for what exactly occurs. Actually ये इसका मतलब आपको पता है ना, P of A intersection B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, P of A minus P of A intersection B है। तो उसी तरह से P of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B क्या होगा बताओ तो, P of B minus P of A intersection B है। अभी इसको और इसको ऐड करो, P of A plus P of B, ये 2 बार होगा ना, देखो इसीलिए ये फॉर्मूला। समझ में आया क्या? इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P of A यूनियन B में से माइनस P of A इंटरसेक्शन B करो, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बार है ना, तो एक माइनस होगा ना, ये इधर और एक वैल्यू इसमें से उठा लो, ये P of A यूनियन B होगा, तो बचा एक माइनस में P of A इंटरसेक्शन B, तो ये भी फॉर्मूला हो जाता किसका, एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B ऑकर्स का। या तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये सभी फॉर्मूले किसके, एग्जैक्टली वन ऑफ A B ऑकर्स के हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है बेसिक थिंग्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके 2 बेसिक रिजल्ट्स जो मैंने अभी आपको यहाँ पे रिमाइंड किए, एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स हमने अब तक खत्म किए। अभी आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो एक तो 2 क्वेश्चन तो रहते ही है, एक तो फॉर्मूला पे आता है, एक तो कोई ऐसे कैलकुलेशन टाइप में वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या है, आप लोगों को पता ही होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपका नॉलेज रिफ्रेश हो जाए एंड यू वुड be confident in solving the questions, isn't it? Conditional probability क्या होता है, if A and B be 2 events, ठीक है, which are associated with a random experiment, then the probability of occurrence of an event A under the condition that B has already occurred, मतलब 2 इवेंट्स ऐसे हैं कि एक उसमें ऑलरेडी हो चुका है, अभी दूसरे होने जा रहा है, ये दूसरा होना जो है ये अंडर द कंडीशन ऑफ जो हो चुका है उसके बलबूते हो रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब यहाँ पे ऑकर्ड इवेंट कौन है, बी है, बी ऑलरेडी हो चुका, अभी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, पी ऑफ ए की निकालनी है, बी ऑलरेडी हो चुका, पी ऑफ ए की निकालनी। इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ठीक है। जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक इवेंट का, तो उसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू अदर इवेंट निकालते हैं। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं पी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑफ बी, या तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और इसका ये है फॉर्मूला, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो बताओ कैसे रहेगा फॉर्मूला, पी ऑफ बी बाय ए, इसको बी बाय ए भी पढ़ सकते हो, या तो बी गिवन ए भी पढ़ सकते हो, बी प्रोवाइडेड ए ऑकर्ड ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो इसका इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कैसे याद रखने का आपको समझ में आया क्या, जो बाय है ना, बाय वो डिनोमिनेटर में आने वाला है, बाय के बाद वाला जो है ना, अभी इधर बाय ए था तो डिनोमिनेटर में पी ऑफ ए आ रहा, न्यूमरेटर दोनों फॉर्मूला का सेम। तो इसको हम लोग इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला एक बार बताओ तो, P ऑफ A बाई बी को, इसको मैं देखो ये जो A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी ना, इसको इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इनका प्रोडक्ट लिख सकती हूँ, P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई ए लिख के अपॉन में क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे इसका क्या था, P ऑफ B। तो मैंने सिर्फ किसको चेंज किया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B को चेंज किया और ये इंटू ये करके इसकी वैल्यू लिखी। समझ में आया क्या? तो देखो ये भी फॉर्मूला कभी कभी यूज हो जाता है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ए बाई बी दिया है, बी बाई ए निकालने के लिए बोला तो निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली, या तो आप एक वे में भी इसको प्रोसेस कर सकते हो, आपको आंसर तो आने वाला है सेम, ठीक है। तो ये हो गए, दिस इज अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही है ना, तो इसको भी तो वो सब कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी जनरल इवेंट सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या मैं बता रही हूँ, देखो पहला तो ये मतलब कि ये भी एक इवेंट है, इसका भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 जाएगा, मिनिमम 0 जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ऑल्सो लाइज फ्रॉम 0 till the 1, okay, it will be always a fractional value when it is not sure and not impossible event, okay, when it is impossible its value is 0, when it is sure event its value is 1, ठीक है। और दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय ए, एस क्या है यहाँ पे, सैंपल स्पेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय ए लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू 1, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय ए क्या रहता है, देखो यहाँ पे बता देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय ए का फॉर्मूला लगाओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन S अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अभी A इंटरसेक्शन S का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ही आएगा ना, A इंटरसेक्शन S मतलब क्या,
ए का इंटरसेक्शन विथ सैंपल स्पेस जो कि यूनिवर्सल सेट है, किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन तो वो सेट ही आता ना, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन रहा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये कट के 1 आ रहा कि नहीं, तो इसीलिए 1 है ना। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय ए इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए विच इज सेम एज 1। और दूसरा फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी को हम लोग हमारा जो यूनियन का फॉर्मूला ना उससे ही करेंगे, बट सबको क्या देंगे, बाई सी बाई सी बाई सी सबको देंगे, पी ऑफ ए बाई सी प्लस पी ऑफ बी बाई सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई सी। ये हमारा जो यूनियन का फॉर्मूला था ना, यूनियन का फॉर्मूला ये, बट सबको क्या लगाना है, बाई सी बाई सी बाई सी लगाना है। सिमिलरली ये कॉम्प्लीमेंट वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी को क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। समझ में आई क्या बात। तो मैं इसीलिए बोल रही थी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही है, तो ये सभी कुछ ऐसे फॉर्मूले फॉलो करेंगे जो फॉर्मूले हम अब तक लिख के आए थे फॉर एन इवेंट, ठीक है। अभी देखो दूसरा और एक यहाँ पे नोट बना के दे रही हूँ मैं आपको कि जब भी आपके पास ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो पी ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा, बी, एंड पी ऑफ ए बाई बी हो जाएगा पी ऑफ ए। अभी क्यों मुझे बताओ एक बार, क्यों ऐसे पॉसिबल है, क्योंकि देखो पी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। अभी जब मैं बोल रही हूँ कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया तो इसमें से क्या कट रहा है, इसमें से ए कट रहा, बच कौन रहा, पी ऑफ बी बच रहा है, तो इसीलिए पी ऑफ बी आएगा। और दूसरा बनाओ तो अभी फॉर्मूला पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला बना लो खुद से, ये क्या होगा, इसमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी होता ना, तो इसमें से क्या कटेगा, इसमें से पी ऑफ बी कटेगा, बचेगा क्या, पी ऑफ ए बचेगा, तो इसीलिए ये है पी ऑफ ए। तो सिंपल सी चीजें ये, भले ये फॉर्मूलाज है बट ये सब ये समझ के दिमाग में रखने वाली चीजें है ना, इसको आप भूल नहीं सकते जब आप उसको समझते हो, तो मैं आपको इसलिए समझा भी रही हूँ। apart the formulas which I am giving, I am making you understand also। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो आपको ऐसे ही चुटकियों में फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो ऑन द स्पॉट इन द एग्जामिनेशन, है कि नहीं। देखो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये इसका स्टेटमेंट पता होना जरूरी नहीं, एक इसका लॉजिक पता होना चाहिए आपको कि एक्चुअली कैसे अप्लाई होता प्रॉब्लम को, ठीक है। तो हम समझते हैं इसको, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, ठीक है, एस सैंपल स्पेस एक एक्सपेरिमेंट का, रैंडम एक्सपेरिमेंट का, एंड E1 E2 सो ऑन करके ऐसे En करके पार्टीशन मतलब ये सबसेट में डिवीजन हो रहा है, इसका पार्टीशन बोलते हैं हम, पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S, ठीक है। मतलब ये E1 टू En क्या है, सबसेट्स ऑफ S सेट है। देन अभी एक इवेंट आप बना रहे हो जो इसको ऑकर होना है with respect to E1 E2 so on till En, then the probability of occurrence of EI when A occurred is, then probability of occurrence of each occurrence of EI when A occurred is given by probability of EI by A is equals to probability of EI into probability of A by EI upon sigma of probability of EI into P of A by EI। यहाँ पे P of EI क्या है, इट्स द प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पार्टीशन सेट्स, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ EI by A क्या बोलेंगे, इट इज पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ऑकर्ड A, हमें यही निकालना है यहाँ पे, पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में P of EI into P of A by EI अपॉन सिग्मा ऑफ ऑल सच P of EI into P of A by EI। मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, आई वुड ब्रिंग अ लेक्चर जहाँ पे मैं कम से कम 2 प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करके बताऊंगी बेस थ्योरम पे, यू हैव टू वेट एंड वॉच दैट लेक्चर, ओके। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मुलाज पढ़ा रही हूँ, ये फॉर्मूला अगर आपको होल्ड पे रखना है तो रख लो, इसका ये फॉर्मूला ऐसे समझने जाओ तो डिफिकल्ट लगता, डायरेक्ट प्रॉब्लम से मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि बेस थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे होना है, क्योंकि ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, ये एस में देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट तो दे देती हूँ मैं, E1 E2 ऐसे करके ये सब इवेंट्स बने हुए हैं, समझो मैं इतने सारे क्यों लूं, मैं समझो 2 ले लेती हूँ ना, कोई 2 ले लेते हैं, समझो एस का पार्टीशन हो रहा है 2 में, E1 में एंड E2 में। तो अभी सबसे पहले क्या चीज होता है एक्सपेरिमेंट, पहले ये इनको किसी एक को लेना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को लेने की क्या रहेगी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का लेने का क्या रहेगा 1/2, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट 2 में बटा हुआ है, तो किसी एक हिस्से को लेने जाओ तो उसको हाफ चांसेस है ना, आउट ऑफ 2 1/2 चांसेस है, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी इसके अंदर कुछ चीजें हैं, इसके अंदर कुछ चीजें हैं, मुझे समझो बोला गया इसके अंदर है गोल्ड कॉइन एंड सिल्वर कॉइन्स, इसके अंदर भी है कुछ गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन, मुझे समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन चाहिए,
तो अभी वो गोल्ड कॉइन तो E1 से भी आ सकता है, E2 से भी आ सकता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम E1 ये लिख सकते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम E2 लिख सकते हैं। अभी वो पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, मैंने जो निकाला वो गोल्ड कॉइन था, बताओ कि ये पहले बक्से से आया, दैट इज E1 से आया, तो ये हो गया हमारा बेस थ्योरम। देखो यहाँ पे मैं पढ़ा दे रही हूँ आपको, अभी एग्जाम्पल नहीं भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब इवन बक्सा, गिवन दैट ये गोल्ड कॉइन हमने दिया था, तो बताओ कि इसकी ये गोल्ड कॉइन पहले बक्से से आया, तो E1 से आया, तो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये बन गया। इसका न्यूमरेटर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G बाई E1, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी G बाई इवन, बट ये दूसरे बक्से का भी है ना, तो टोटल में सैंपल स्पेस में वो भी बक्सा आएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम द E2। तो अभी आपको समझ में आ गया क्या, बेस थ्योरम आ चुका रहेगा। अगर फिर भी नहीं आया तो यू हैव टू वेट नाउ, आई वुड एक्सप्लेन यू आउट the thorough understanding of this topic with an example. Already मैंने यहाँ पे I tried my best to make you understand, but ये theorem ऐसा है ना, आप इसको theoretically समझने जाओ तो difficulty लगता, कुछ भी कर लो, but when you solve 2 to 3 questions on base theorem, you would find the base theorem is such easy, ठीक है। तो मैं इसके 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताऊंगी व्हेन आई ब्रिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल क्या है पता कर लेते हैं। ये रैंडम वेरिएबल ऐसी चीज है कि अभी तक हम लोग ना एक कॉइन फेंका, 2 कॉइन फेंका, ऐसे कुछ नॉर्मल चीजों की बात कर रहे थे जिसको मैन्युअली कैलकुलेशन करना बहुत आसान था। बट रैंडम वेरिएबल तभी पिक्चर में आता जब आप ना मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कॉइन को 20 बार फेंक रहे हो, 100 बार फेंक रहे हो, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड, राइट। तो अभी देखते हैं रैंडम वेरिएबल फिर है क्या, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द डेफिनेशन। इफ रैंडम वेरिएबल x takes the value certain x1 x2 so on xn with respect to the probabilities p1 p2 so on pn, then representation is this. This is the probability distribution of random variables. This is the probability distribution of random variables. समझ में आ रहा है कि ये क्या है। यहाँ पे पहला जो रो है इसमें x1 x2 x3 ये सब वैल्यूज लिखे हैं, और p of x जो है सेकेंड रो में इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखे हैं, p1 p2 p3 करके सो ऑन। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बट ये इस तरह से दिखाया जाता है x1 x2 x3। समझो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ, समझो आप क्या बोलते हो, कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो है ना हेड कितने कितने, 0 हेड मिलेगा 1 हेड, तो x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। 0 हेड पाने, 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, या तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, टेल टेल आएगा ना, 2 कॉइन आप थ्रो करोगे तो 1 आउट ऑफ 4 चांसेस, है ना। अभी 1 टेल की x1 x2 इक्वल टू 1 वैल्यू, 1 टेल लेने का, 1 टेल में क्या क्या th है तो ht, तो 2 आउट ऑफ 4। तो ये समझ में आ रहा है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। xi ये क्या है, ये इवेंट्स है, एक टाइप के इवेंट्स, 0 टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल सो ऑन, ये हम लोग एक्साइज लिखेंगे और उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। तो इस तरह से हम टेबल बना के देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सभी इवेंट्स क्या रहते हैं, एग्जॉस्टिव रहते हैं, तो इसीलिए सबका प्रोबेबिलिटी का एडिशन, ये प्रोबेबिलिटी का एडिशन सिग्मा ऑफ पी आई क्या रहता है, 1 रहता, ठीक है। सिग्मा ऑफ पी आई क्या रहता है, 1। तो आपको रैंडम वेरिएबल पे आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे कुछ तो अननोन के रहता है और बोलते के की वैल्यू निकालो, तो आप सबका सिग्मा ऑफ पी आई इक्वल टू 1 लेके उसको सॉल्व करके के की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ई ऑफ एक्स क्या होता है, मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, और इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ पी आई एक्स आई। एंड वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर होता है, बिकॉज सिग्मा इज द रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस इज सिग्मा का स्क्वायर, एंड इसका ये फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आपको पता रहना जरूरी है। अभी ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे किसका स्क्वायर होता है, एक्स आई का स्क्वायर होता है इनटू पी आई। जैसे कि ये ई एक्स क्या है, ई एक्स क्या है, ये है, तो ई एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, ये एक्स आई का स्क्वायर आएगा बस, ठीक है ये। और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस को फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने अंडर द रूट में ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स दी होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, रिमेंबर करने हैं, इजी है फॉर्मूले, उतने कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अभी इसके अलावा भी है कुछ प्रॉपर्टीज वाइज फॉर्मूले, ये याद रखो, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प होगी यहाँ पे, कि जब भी एक वेरिएबल y इक्वल टू आपका a x प्लस बी है, तो e ऑफ ये y कैसे मिलेगा, e ऑफ
ए एक्स प्लस बी करके, जिसपे ये ए टाइम्स ई एक्स हो जाएगा प्लस बी आएगा, ये प्रॉपर्टी है। सिग्मा ऑफ वाई, ये वाई का सिग्मा क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, इट वुड बी द वेरिएंस ऑफ वाई बिकॉज सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई विच कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू वी एक्स, ए स्क्वायर इंटू वी एक्स, ये प्रॉपर्टी है। सिग्मा ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू वी एक्स, ये जो है ना ये मल्टीप्लायर क्या होता, स्क्वायर होता, ठीक है, सिग्मा के अंदर, एंड इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ये जो प्लस बी है इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता सिग्मा के ऊपर, सिर्फ ये जो मल्टीप्लायर है ना, मल्टीप्लायर इसका इफेक्ट होता है। अगर स्क्वायर करने जाओ, सिग्मा का स्क्वायर है तो स्क्वायर होता, वेरिएंस में पक्का वो स्क्वायर ही आता, वेरिएंस में क्या आता, पक्का वो स्क्वायर आता। सिग्मा ऑफ वाई क्या है, इट्स अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर का अंडर द रूट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मॉड ए करके लिखा है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, सो एब्सोल्यूट लेना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ वाई विच इज इक्वल टू मॉड ए सिग्मा एक्स, ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। उसी तरह से अभी आप ये बना सकते हो, देखो अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो e ऑफ y क्या हो गया, e ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a इंटू ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू ई ऑफ एक्स। तो अभी मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताती हूँ, सिग्मा ऑफ, अभी आप क्या करो, आई वुड गिव यू होमवर्क हियर नाउ, आप क्या करो यहाँ पे सिग्मा ऑफ y निकाल के बता लो खुद को, जैसे मैंने इसका बना के बताया ना इसके लिए, ठीक है, आप इसका बनाओ, किसका, इस वेरिएबल का आप बना लो, ठीक है। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट पे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हमारा ट्रायल क्या रहता, बर्नौली ट्रायल रहता, या तो हम इसमें सक्सेस की बात करते हैं या तो फेलियर की, इसके अलावा कुछ बात नहीं कर सकते। ऑन ऑफ, जिसमें जिसके पॉसिबिलिटी सिर्फ दो ही है, या तो होना या तो नहीं होना, सक्सेस मतलब होना, फेलियर नहीं होना। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे बर्नौली ट्रायल्स होते हैं जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि या तो वो ट्रायल एस है या तो नो है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब पी और क्यू की वैल्यू पता करने का रहता है हमारा टास्क, है ना। पी क्या रहती है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्यू क्या रहती है, फेलियर की रहती है। तो ये सभी बातें मैं आपको बता रही हूँ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इन एन बर्नौली ट्रायल्स इज डिनोटेड बाय p at x equal to r and it is given by NCR p to the power r q to the power n minus r। ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ये इजी है। देखो सक्सेस के ऊपर हम प्रेफरेंस दे रहे तो ये NCR p to the power r q to the power n minus r आएगा, where p is a probability of success, q is a probability of failure। अभी ये सक्सेस करके कैसे जान ले, आपको जो क्वेश्चन आया रहता है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी रहती है उसको आप ज्यादातर क्या लेते, सक्सेस करके आगे बढ़ते, p लेके चलते, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए रहती है वो p लेके काम करते, तो ये फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना रहता है, ठीक है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताने जाए तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, ये x का रो फिर से 0 1 2 एंड सो ऑन, बट इसका px का रो में क्या आएगा, nc0 p0 q to the power n फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 के लिए nc1 p to the power 1 q to the power n minus 1 सो ऑन। तो ये तो सिंपल क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके जो इवेंट्स रहते हैं वो कौन रहते हैं, बर्नौली ट्रायल्स रहते हैं, बर्नौलीज ट्रायल्स, जिसको सिर्फ दो चांसेस रहते हैं, या तो होना नहीं होना, या तो दैट इज सक्सेस और फेलियर रहते हैं, ठीक है। अभी यही ये डिस्ट्रीब्यूशन के भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, दैट इज अबाउट द मीन एंड वेरिएंस, तो इसको भी आपको रिवाइज करके जाना है। इफ p is equals to q मतलब failure is equals to success, then the probability of r successes in the n trials we can write simply this way, क्योंकि एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, nc x p to the power x q to the power n minus x था ना। अभी मैंने क्या बोला, p equal to q, तो p equal to q मतलब क्या हो गया, ये nc x p to the power x q to the power p, ये भी p आया ना, p to the power n minus x, तो ये p to the power n आएगा, देखो ये ncn आ जाएगा फिर, है ना, nc x p to the power n आ जाएगा ये, है ना। तो ये चीज है। और इसका मीन का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, मीन का फॉर्मूला ई ऑफ एक्स को मीन बोलते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं, एनपी रहता है इसका मीन, और इसका वेरिएंस क्या रहता है, एनपी क्यू। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर होता है, वेरिएंस इज अ सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज द सिग्मा। आप कोई तो एक तरीके से याद रखो, सिग्मा इक्वल टू रूट वेरिएंस बोलो या तो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बोलो, दोनों का मतलब वही है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि मीन जो रहता है ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस रहता है, कभी भी याद रखो, ठीक है। एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज n इन एनी अटेम्प्ट एंड इफ देयर आर n सच अटेम्प्ट्स,
देखो ट्रायल्स कितने हैं, स्मॉल एन है, और अटेम्प्ट्स कितने हैं, एन, कैपिटल एन है, देन द टोटल नंबर ऑफ आर सक्सेसेस का जो है ना, ये हो जाएगा एन टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन टाइम्स एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रायल्स है एन फॉर एन एक्सपेरिमेंट, बट देर आर कितने ऐसे सेम अटेम्प्ट्स है, एन, कैपिटल एन टाइम्स सेम अटेम्प्ट्स है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कैपिटल एन टाइम्स हो जाएगा, वो ट्रायल का प्रोबेबिलिटी कैपिटल एन टाइम्स हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये था हमारे पूरे चैप्टर का रिवीजन, दैट इज द रिवीजन ऑफ द चैप्टर probability I have done for you with all the important things in mind that you supposed to recall, revise before you attempt your examination, right? So thanks for watching this video, guys. I would meet you in the next session. I would come up with the most important questions on probability. There I would discuss problems on the generic probabilities, numerical value based probability, Bernoulli's binomial distribution, random variable theory, and Bayes theorem, and conditional probability. So I'll be discussing all sort of questions in the upcoming session. Stay tuned and do not forget to subscribe to my YouTube channel to get the updates regarding the uploads that I'm doing for your preparation towards NDA written examination.